على الناصية، مليان بخير ربنا بس القلوب قاسية. حيران يا بيت العلالي مش عارف ايه يرويك، عطشان وبتدور والمية من حواليك. بيت العلالي من الدهب والماس، بيت العلالي مزدحم بالناس، بيت العلالي تحرس الحراس، فيما تشتهي لكن ملوش أساس. وراء قصور السادة والأشراف تلقى الفقير اللي مش لاقي رغيف الحاف، وازاي يحس الغني بالجوع وتعذيبه إذا كان وراه الطباخين بيبدلوا الأصناف. ساكن أنا في العلالي فوق شواشي النخل، الكل تحتي وأنا فوق الجيران والأهل. الدنيا فيها العبيد فيها الخدم والسيد، والناس هنا مقامات ومقامي فوق الكل. ساكن أنا في العلالي فوق شواشي النخل. وكل يوم الفلوس بتزيد وتبقالي هي السند والمركز العالي. ما دمت عايش فوق والدنيا جايالي، ما يهمنيش الفقير ولا يجي على بالي، يعطش يجوع أو يموت يا سيدي وأنا مالي. أنا لما يجي الطوفان أدوس على عيالي، لكني رغم الفلوس والثروة مش شبعان، وفي صدري نار العطش أحمى من البركان. واقف وشط النهر قدامي بشرب، لكن قلبي مازال عطشان. मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अरे ज़ेनी साहब कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैसे आना हुआ? आप यहाँ कब पहुँचे? करीब 1 घंटे से। मुद्दत हुई आपसे मुलाकात नहीं हुई। कहाँ थे आप? मैं जरा शहर से बाहर था। क्यों, वहाँ किस लिए जाना हुआ? क्या मतलब किस लिए जाना हुआ? अरे बिजनेस के सिलसिले में। और क्या? बिजनेस के लिए? फिर तो यकीनन आप यहाँ किसी जरूरी काम से आए हैं। कोई बड़ी पार्टी है क्या? बात कुछ मुख्तलिफ है। सुनो, हम यहाँ बात नहीं कर सकते, कहीं और मिलते हैं। अरे क्यों नहीं, कम से कम गुजरे वक्त की याद ताजा करेंगे। वो कैसीनो जहाँ मिलते थे। बिल्कुल। ऑफिस के बाद मुझे वहाँ मिलो, कुछ बात करनी है बिजनेस के बारे में, बहुत जरूरी है। ठीक है। ये ट्रक कब आएंगे? इसी हफ्ते में। और तुम्हारी फ्री जोन कहाँ है? समूहा के इलाके में। और नंबर प्लेट कौन तब्दील करेगा? यहाँ ऐसे लोगों की कमी है क्या? पूरा शहर भरा हुआ है, हम कुछ लड़के काम पर रख लेंगे। अरे नहीं, यहाँ के लोगों को काम पर मत रखना, वो तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे और काम में मुश्किल पैदा करेंगे। ये भी सही है, हम किसी और इलाके से कारीगर मंगवा लें। ये ठीक नहीं रहेगा। इस बात में क्या खराबी है? क्या मैं चांद से लोग मंगवाऊं? नहीं, इसी मुल्क से हम कुछ इंतहाई गरीब ना तजर्बाकार लड़कों को रखेंगे। उन्हें पैसा भी कम देना पड़ेगा, वरना लालच पैदा हो जाएगा और ये हमारे लिए खतरनाक है। मैं तो समझा था कि तुम ही चालाक हो, मगर तुम भी कम नहीं हो। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है ज़ैनी। जो सबक नहीं सीखता वो पीछे रह जाता है। ठीक कहते हो।
یہ رکھ لو, یہ اپنے پاس رکھ لو. اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ پیسے ہیں, پیش کی رقم. یہ ہوئی نا بات. ارے آپ کہاں غائب تھے زینی صاحب؟ بہت عرصے سے نظر نہیں آئے. میں شہر سے باہر تھا, بس ابھی واپس لوٹا ہوں مراد صاحب. میں ذرا راشد صاحب سے ملنے جا رہا ہوں کچھ. لیکن میرے کام کا کیا کیا آپ نے؟ ارے آپ ایسا بات کریں, کوئی سن لے گا مراد صاحب. مگر میں بات کرنا چاہتا آپ ہوں. مجھ پہ بھروسہ کیجیے, آپ کے لیے اچھی خبر ہے. پھر بتاؤ مجھے. آج رات مجھ سے کلب میں ملنے دیر مت کیجیے گا. دیر کیسی؟ مجھ سے تو صبر بھی نہیں ہو رہا. ابھی مجھے راشد صاحب کے پاس جانا ہے. کیا بات ہے؟ صرف تھوڑی دیر راشد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. اگر مختصر بات ہے فون پر بات کر لیجئے. یہ بات فون پہ نہیں ہو سکتی. وہ مصروف ہیں. شرط لگائیں گے آپ؟ کیسی شرط؟ جیسے ہی آپ بتائیں گی زینی ساتھ ملنا چاہتا ہے, وہ فوراً بلائیں گے. نہیں سر, ناراض ہوں گے. صرف ایک بار, اگر آپ نے کچھ نہ کیا تو سارا دن یہیں بیٹھا رہوں گا. نہیں پلیز. راشد صاحب ذہنی ملنا چاہتے ہیں. اندر بھیج دو. میں نے کیا کہا تھا؟ جی اندر جائیے. آ جاؤ. مبارک ہو سر, ٹیکس کی ڈیل فائنل ہو گئی. وہ کیسے؟ فکر نہ کریں, میری کسٹم آفیسر سے ساری بات ہو گئی. اسے منایا کیسے؟ اپنے دماغ سے وہ پرانا دوست نکلا. ہاں پھر تو وہ مدد ضرور کرے گا. یقیناً راشد صاحب بالکل کرے گا. وہ تمام ضروری کاغذات خود تیار کرائے گا. اور فری زون والے کام کا کیا ہوا؟ یہ سب وہ دیکھ لے گا. ہمارے لوگ اس کے پاس پہنچ جائیں گے. ساری بات ہو چکی ہے. مگر وہ فری زون تک کیسے پہنچیں گے زینی؟ آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے. آفیسر کے ساتھ پورٹر کی طرح اجازت نامے کے ساتھ جائیں گے. کنسائنمنٹ کا کیا ہوگا؟ مکمل ہو چکا ہے. اور ان کی سیل؟ عطا انہیں بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ تو کمال ہے, زبردست. میں تو یوں ہی پریشان ہو رہا تھا. راشد صاحب, کیونکہ یہ میری پہلی غیر قانونی ڈیل ہے. اس سے پہلے ہر کام لیگل تھا. بزنس میں ہیر پھیر کرنی پڑتی ہے, لیکن محدود طریقے سے. کام تو ایسے ہی ہوتا ہے سر. اب پہلی مرتبہ کر رہے ہیں اسی لیے پریشان. اگلی مرتبہ آپ صرف فکر مند ہوں گے اور اس کے بعد آپ عادی ہو جائیں گے. پھر اگلی ڈیل کے لیے خود تیار ہو جائیں گے. بالکل یہ خلاصہ ہے. اس کام میں بہت منافع ہے سر. آپ دیکھیے گا پیسوں کی بارش ہوگی. میں صرف یہ خوشخبری دینے آیا تھا. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. زبردست. فورٹ سیکیورٹی ڈیل, اس کا کیا مطلب ہے؟ ارے کیا بات کر رہے ہیں آپ نہیں جانتے مراد صاحب. ہاں آپ تو غیر ملکی ہیں. بتائیے تو, آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس ڈیل میں مکھن, پنیر, تیل اور انڈے وغیرہ کا بزنس ہے. یہ ہمارے یہاں لائے جا رہے ہیں. میں نے درآمد کرنے والوں سے خریدنے کی بات کر لی. اگر آپ کیا کہتے ہیں مراد صاحب؟ اس میں منافع کتنا ہوگا؟ اخراجات کو نکال کر منافع 30% ہوگا. چیزیں بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ منسٹری آف ہیلتھ اور سپلائی سے اجازت نامے ملنے کا ہے, جو اسٹینڈرڈ اتھارٹی سے ملے گا. وہ تو ٹھیک ہے زینی صاحب, مگر آپ اجازت نامہ کیسے حاصل کریں گے؟ آپ فکر مت کیجیے. آپ کو مسٹر فرید واسی یاد ہیں جو آپ کے ڈیڈ کی پارٹی میں آئے تھے؟ مگر ان کا کیا تعلق؟ وہ شخص آپ کو 2 دن میں ہر قسم کا اجازت نامہ دلا سکتا ہے. یہ بات ہے تو آپ ڈیل کو فائنل سمجھیں. پہلے آپ اپنی والدہ سے بات کر لیجئے. انہیں مجھ پر بھروسہ ہے, ان کی ہاں ہی سمجھے. بہترین, میں آپ سے مل لوں گا. آپ رقم لے کر آئیے گا. آپ وہاں کا دورہ کر لیجئے اور سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا. آپ اپنے کمیشن کی فکر مت کیجیے گا. آپ جو کہیں گے وہ مل جائے گا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. بہت مبارک. میں آج تیسری مرتبہ محل آئی ہوں. امید ہے آپ آتی رہیں گی, اور خدا نے چاہا تو ہماری دوستی اسی طرح بنی رہے گی. ہمیں ایک دوسرے کے گھر آتے رہنا چاہیے. اگلی بار آپ کو آنا ہوگا. بالکل, کیوں نہیں. سیفی ناز, میں بہت خوش ہوں کہ مسٹر رمیز سے ملنے کا موقع ملا. پارٹی میں انہیں زیادہ وقت نہیں دے پایا تھا. اس رات لوگ بھی بہت تھے, موقع بھی نہیں ملا, اور بہت ہی معزز لوگ تھے. نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. جی ہاں, وہ بہت خاص لوگ تھے. ایک بات بتائیے انکل راشد, پوچھو. آپ اسٹاک مارکیٹ میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں, میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے, اور کچھ نہیں. میرے ڈیڈ اس بزنس میں انوالو ہیں, اور وہ تو وہاں جاتی بھی نہیں ہیں.
ये अपने ब्रोकर पर मुनसर होंगे। नहीं, हमारे पास कोई है जो ब्रोकर से ज्यादा काबिल एतमाद है। वो कौन? रेहाना। उसने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई की होगी। जी, मैंने बिजनेस की तालीम हासिल की है और AUC से डिप्लोमा हासिल किया है। जबरदस्त, बहुत खूब। इसका मतलब है कि तुम बहुत ज़हीन। मैंने सुना है मिस्टर मुराद एक कामयाब बिजनेसमैन हैं। वो पढ़े लिखे और ज़हीन नौजवान हैं। कंपनी की सारी जिम्मेदारियां उसी ने उठा रखी हैं। वही तो कंपनी का GM है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो तो क्लब में है, बस अभी आता ही होगा। ओह, वो आ गए हमारे कंपनी के GM। आओ आओ सलाम। बेटा। लो, आ गया। सलाम। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप तो बिल्कुल भी जनरल मैनेजर नहीं लगते। जी, मैं आपकी बात समझा नहीं कि आप क्या कह रही हैं। मेरे ख्याल में जनरल मैनेजर मोटे और गंजे हुआ करते हैं और उनकी दाढ़ी भी होती है। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो पुराने वक्तों की बातें हैं। लेकिन आजकल के GM तो जवान और खूबसूरत होते हैं, जैसे मेरा बेटा मुराद। ये आप क्या कह रही हैं मामा? ऐसी कोई बात नहीं। क्यों नहीं बेटा? लड़कियां खूबसूरत होती हैं। और तुम तो लड़की नहीं हो, तुम तो नौजवान मर्द हो। आप इन लोगों को बैठकर बात करने दें, हम लोग ऊपर टेरेस में चलते हैं, आराम से बात करेंगे। चलिए जी आइए। चलिए। स्टॉक मार्केट के बारे में बात मत करना। फिक्र मत कीजिए, मुराद हर मौजू पर बात कर सकता है। हाँ, उसे देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। अब देखो क्या कुछ बदल गया है। आप तो अभी भी जवान है राशिद साहब। आप क्या कहती हैं मिसेस सैफीनाज? जवान हो या बूढ़े, रहना तो इन्हीं के साथ है। खुदा आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे। जनाब, फौजी साहब आए। अंदर भेज दो। सलाम। सलाम, कैसे हो तलत? तुम कैसे हो फौजी? खुदा का शुक्र है। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। वो कैसे? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था फौजी। और मैं हाजिर हो गया। एक बात बताओ, एक नेक काम करना पसंद करोगे? क्यों नहीं? बहुत खूब। मुझे कार्य खैर के लिए कुछ रकम चाहिए। अरे कहो तो सही, मैं खुदा की राह में देने के लिए मना नहीं करता। अरे क्या वाकई? क्या मतलब है तुम्हारा तलत? खैरात करना तो सवाब का काम है। मैं भी हमेशा खुदा की राह में देता हूँ। दे यकी देना तो फर्ज है, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं समझते, ना हमारे लोग ना तुम्हारे। हालांकि इस बात की खुदा की नजर में बड़ी अहमियत है। कलामे खुदा में एक आयत है, लिखा है अपनी सारी जमीन की दे यकी, खा जमीन की पैदावार दरख्तों का फल हो, खुदावंद के दिए है। यानी दरख्तों के फल भी? यकीनन, हर एक चीज यहाँ तक कि जानवरों की भी। फिर तो ये फर्ज हुआ। और खुदा ने कहा है इसका अजर भी है। अपनी पूरी दे यकी जखीरे खाने में लाओ और मेरे हजूर में पेश करो, और मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर इतनी बरकत बसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना हो। ये बिल्कुल सच है। जितना मैं गरीबों को देता हूँ, खुदा मुझे उसकी दुगनी बरकत बख्शता है, और यही मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। बिल्कुल सही, मेरा भी यही मानना है, और हमारी सोच भी बिल्कुल एक जैसी है। हम हमेशा एक जैसा सोचते हैं। लोग बातों को समझते नहीं, मगर फिर भी वो हम में फर्क रखते हैं। पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर वो हम दोनों की तरह इसे समझ सकें तो कोई इख्तलाफ पीछे नहीं रहेगा। अगर हम एक दूसरे के हाथ मजबूती से थाम लें तो कोई दुश्मन हमें जुदा करने के बारे में नहीं सोचेगा फौजी। खुदा हमें अकल और फहम अता फरमाए। हम मौजू से भटक रहे हैं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अरे हाँ, मुझे याद आया, एक खैराती प्रोग्राम हो रहा है और टिकट की कीमत 1000 पाउंड है। 1000 पाउंड? हाँ, आजकल खैरात भी महंगी हो गई है। तुम्हें मालूम है खैराती कामों में पीछे नहीं हटता। मुझे 3 टिकट दे दो। 3 टिकट? किसके लिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? इसके लिए बेशक मैं 3000 पाउंड दे सकता हूँ। ये सब कुछ खुदा ही ने तो दिया है। हाँ, इस बात से मुझे वो बुढ़िया याद आ गई जिसने खुदा की राह में सब कुछ दिया। तलत, सब कुछ खुदा की राह में? असल खैरात करना यही तो है। कौन थी वो? वही औरत जिसे यीशु मसीह ने हैकल में देखा। उस रोज यीशु और उसके शागिर्द हैकल में गए। वो खैराती संदूक के पास खड़े थे।
जहां लोग अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे थे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस बेवा औरत ने सबसे ज्यादा दिया है, क्योंकि हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, मगर इस बुढ़िया ने जो कुछ इसके पास था दे दिया। अच्छी मिसाल दी तुमने, मगर आजकल के लोग ये सब नहीं मानते। पहले भी नहीं मानते थे। तुमने देखा अमीर लोगों ने क्या किया? उन्होंने एक दूसरे से ज्यादा देने की कोशिश की। कुछ लोग तो खैरात का काम करके इश्तिहार छपवाते हैं। वो लोग तो खैरात की तस्वीर के लिए ऐसा करते हैं, ताकि लोग उनके सखी जाने और उनका ढंढोरा हो। वो तस्वीरें खिंचवाते हैं, टीवी पर आते हैं, ताकि उनका नाम हो और मशहूर हो। ये लोग आदमियों से अपने अजर चाहते हैं। वो आदमियों से अजर चाहते हैं? यकीनन वो इसलिए करते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें। जब लोग उनकी तारीफ करते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाता है और आदमियों से अपना अजर पा लेते हैं। दुरुस्त कहा। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, यसू के अल्फाज हैं। उसने फरमाया, खबरदार, आदमियों को दिखाने के लिए खैरात के काम ना करो ताकि लोग तुम्हारी तारीफ करें। इस सूरत में तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें कोई अजर नहीं देगा। जब तुम नेकी और खैरात करो तो ढिंढोरा ना पीटो, जैसा कि रियाकार इबादत खानों और बाजारों में करते हैं, ताकि लोग उन्हें इज्जतदार जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। मगर जब तुम खैराती काम करो तो जो तुम्हारा दाहिना हाथ करता है तुम्हारा बायां न जाने। जो तुम्हारा दाहिना हाथ देता है तुम्हारा बायां हाथ भी ना जाने। तुम्हारी खैरात हमेशा मख्फी रहे, ताकि तुम्हारा आसमानी बाप जो पोशीदगी में देखता है तुम्हें अजर देगा। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? आप क्या कह रहे हैं फातमी साहब? अरे ये पेपर्स मुकम्मल नहीं हैं। मैं तो सिर्फ आपकी इजाजत चाहता था। आप ये कागजात देखिए सर। ये हैं। जी सर। इस पर स्टैंप नहीं लगी? ये रही स्टैंप। ये दीजिए सर। ये अभी भी मुकम्मल नहीं है। आप क्या गलती है सर? शनाख्ती कार्ड की कॉपी, टैक्स कार्ड और रजिस्ट्रेशन। ये रहे जनाब शनाख्ती कार्ड की कॉपी, टैक्स कार्ड, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन क्या नामुकम्मल है? तुम बताओ क्या कमी है इसमें? अब ठीक है, मैंने साइन कर दिए हैं। ये लगा दी स्टैंप। बहुत बहुत शुक्रिया फातमी साहब, बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आपके कागजात बिल्कुल मुकम्मल हैं। शुक्रिया फातमी साहब, इजाजत दीजिए जनाब। बहुत शुक्रिया। अगली बात वक्त पर मोहर लगा देना ताकि मुश्किल ना हो। जी बेहतर। खुदा हाफिज, दोबारा जरूर आना। आप कैसे हैं फातमी साहब? तुम यहाँ कैसे आए हो? सलाम करने हाजिर हुआ हूँ। अच्छा बताओ, तुम जूतों को चमकाते हो या गंदा करते हो? नहीं 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 जनाब, मैं इस इलाके का सबसे बेहतरीन कारीगर हूँ। मैंने कभी जूते गंदे नहीं तुम्हारा किए। मतलब है मैं गंदे करता हूँ? नहीं नहीं जनाब, नहीं नहीं जनाब। यहाँ बैठो और इन्हें पॉलिश करो। अच्छी तरह चमकाना है दीजिए, इन्हें। लाइए, वहाँ बैठो और अपना काम करो। फातमी साहब, आपके नाम पर यह खत मौसूल हुआ है। कौन लाया है? ड्राइवर। अब तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फातमी साहब, क्या है? जूते एकदम चमक गए। आईने की तरह? ठीक है, ठीक जी हुजूर।
कोई शिकायत जनाब? और ये लो तुम्हारी उजरत। जनाब ये तो ये ठीक क्यों, क्या ये कम है? ठीक है जनाब, मगर ये बहुत कम है। वो क्यों, तुमने किया ही क्या है? एक हाथ यहाँ एक हाथ वहाँ मारा है। ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर क्या है जनाब? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो जूतों के मालिक की बात कर रहा हूँ अगर मैं जनाब। इससे ज्यादा क्यों दूं? मेरा मतलब है आपके लिए पैसा क्या है? आप तो छोटे छोटे नोट देखते भी नहीं होंगे, तो कुछ और बढ़ा दें। इससे ज्यादा और क्या दूं? वक्त बदल गया सरकार, आप तो दिलदार शख्स है फातमी साहब। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। आप तो बहुत समझदार है अच्छा? फातमी साहब। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तो फरिश्ता हैं। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से। जो हुक्म दफा हो जनाब, जाओ। मैं चलता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। यानी कागजात मुकम्मल हो गए? तुम्हें लगता है मैं मक्खियां मार रहा था? दिखाओ कहाँ है। मेरी जेब में। तुम क्यों परेशान हो? तुम वो मेरे हवाले कर दो। नहीं, पहले मेरे लिए 2 किलो झींगा खरीदो, 1 किलो भुनी हुई मछली और एक तली हुई मछली मंगवाओ। सुना तुमने, ले आओ जो ऑर्डर दिया। और जी जल्दी सर। आना। अब मुझे कागजात दे दो। इस लिफाफे में तमाम कागजात और परमिट मौजूद हैं। कल से हम और तुम अपने ट्रक कस्टम जोन में शामिल कर सकते हो। और ये तो बताओ, कारीगर अंदर कैसे दाखिल होंगे? तुम इस इजाजतनामे के तहत 5 वर्करों को जोन में ले जा सकते हो ताकि वो मामूली मरम्मत कर सकें, यानी सामान को चढ़ाने और उतरने में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत कर सकें। जबरदस्त, अब मैं बहुत खुश हूँ मेरे भाई। मैंने तुमसे कहा था फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम तो कमाल हो फातमी, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हेलो रेदा, क्या कर रही थी? तुम भी? तुम्हारे घर में कंप्यूटर है क्या? जरूरी काम है। अल्फोता कंपनी की फाइल के बारे में बताओ। बिल्कुल, मुझे अभी बताओ, अभी इस वक्त। किसी को भेज दो। रेदा, ये जरूरी ना होता तो क्यों कहता? क्या ये मुमकिन है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ, मैं इंतजार करता हूँ। खुदा हाफिज, बाय। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। फवाद साहब कहाँ हैं? साहब कमरे में और काम कर रहे हैं। कैसी हो रिदा? अरे रिदा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? बिजनेस फाइल। आधी रात को कौन सा बिजनेस होता है? फवाद साहब ने कहा फाइल लाने के लिए। आधी रात को? तुम क्या कहना चाहती हो सैफी? बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है मामा? सिर्फ ये कि मैंने अपने महल में आने की इजाजत हर किसी को नहीं दी है। हर किसी? मैं रिदा हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम आधी रात को फौज से मिलने आ गई हो? क्या बकवास कर रही हो तुम वाह। सैफी? निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। आइंदा मेरे दरवाजे पर कदम भी मत रखना, समझ गई हो तुम? जाओ, निकलो यहाँ से। रिदा, सुनो रेदा, रुक जाओ। रेदा, 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 मेरी बात सुनो रेदा, 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 रेदा। क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे बुलाया था। क्यों किया? क्यों? 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 वो सामी की बेटी मेरे घर में कभी कदम नहीं रखेगी, समझ गए तुम? ऐसा कभी नहीं होगा। आओ रिदा, आओ रिदा। ये क्या? मैंने कहा था ये लड़की यहाँ नहीं आएगी। मुराद, अपनी माँ को कमरे में ले जाओ। मेरे साथ चलो रिदा। रईस, मॉम चले आप यहाँ फवाद को उसके कमरे में ले जाओ। मेरे साथ चलो रिदा। अरे
یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مہمان آیا ہے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ خود کو سنبھالو فواد. یہ میرا گھر ہے, ہمارا گھر ہے, یہ علالی کا گھر ہے. میں نے ٹھیک کہا نا ڈیڈ؟ ہاں ٹھیک ہے. ہیلو ڈاکٹر, میں راشد علالی. میں اس وقت تکلیف کے لیے معافی چاہتا ہوں. کیا آپ میرے گھر ابھی آ سکتے ہیں؟ فواد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا ہے. آپ پلیز آ جائیے. فواد, بہت شکریہ. خدا کے لیے خود کو سنبھالو. جی سر. وہ مجھے مار ڈالنا چاہتی ہے, وہ مجھے برباد کرنا چاہتی ہے. اس نے جو میرے ساتھ کیا وہ کافی نہیں ہے کیا؟ ایسا مت سوچو فواد. مجھے اس سے نفرت ہے. میں اسے مار ڈالوں گا. تم کیا کہہ رہے ہو فواد؟ تم بہادر انسان ہو, تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا. تم ایسے ہمت نہیں ہار سکتے. اپنا خیال رکھو پلیز, میری خاطر. تم رو رہی ہو؟ نہیں تو میں ٹھیک ہوں. يا ربنا محتاج لنقطة المية تبل أرضي وتطرح شوق وحنية, تطلع زهور تبدر عطور الحب حواليا. يا ربنا محتاج لحنية. أنا بيتي في العالي لكن روحي محنية. راجع عشان ارتوي يا رب من فيضك, اروي العطش وانتعش يا رب بوجودك. بعد الجفاف اللي شقق ارضي وحياتي, اوصل لنبعك واشرب ميه من ايدك. راجع لحضنك امتع نفسي بحنانك, واغسل ذنوبي وارتوي من نبع غفرانك. وبعد قلبي معاش خلف السراب عطشان, ينزل عليه الندى ويعيش في بستانك.